برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان، نئے وزیراعظم کے انتخاب تک عہدے پر فائز رہیں گے۔ کیئر سٹارمر مستعفی ہونے کا اعلان کرنے کے دوران فرط جذبات سے آپ دیدہ ہو گئے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ صدر آصف ریزا زرداری وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ایران کا مذاکراتی وفد سوئٹزرلینڈ سے تہران روانہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی ٹیمز آج مذاکرات شروع کریں گی۔ تکنیکی وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے تنازعات نمٹانے والا سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ ایٹمی پروگرام اور پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ پاکستان اور قطر کا امریکہ ایران مذاکرات کا اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری۔ سوئٹزرلینڈ کا امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے والے قطر اور پاکستان کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے کا خیر مقدم۔ سوئس حکام کے مطابق روڈ میپ تکنیکی مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گا۔ ایران کو کچھ منجمد اثاثہ جات کے جاری کر دیے گئے۔ تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیے پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ ایران کے لیے بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے واضح کیا کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا۔ تکنیکی ٹیمز اپنا کام جاری رکھیں گی۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا میکانزم ترتیب دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بحران کے خاتمے، امن و ترقی کی شروعات کے لیے اہم دن قرار دیا۔ واضح کیا کہ اگر ایرانی قیادت علاقائی عدم استحکام کا باعث بننا اور نیوکلیر پروگرام چھوڑ دے تو پھر امریکہ ایران کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات بنائے گا، اور کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی شروعات کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ ایرانی عوام سے تعلقات بہتر بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بات چیت میں اہم کردار، مل کر دنیا میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات امن کے لیے اہم موقع قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر عالمی توجہ کا مرکز بن گئے۔ نائب امریکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے معترف وی لو پاکستان کا نعرہ لگا دیا۔ جے ڈی وینس نے اپنی بھارتی اہلیہ کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنی زندگی کی اہم شخصیت قرار دیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس، 9 منتخب 30 اراکین نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد نے اراکین سے حلف لیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے اجلاس 3 بجے تک کے لیے ملتوی۔ وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزارت داخلہ کے مطالبات زر منظوری کے لیے پیش کر دیے۔ کراچی اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے 7.5 ارب روپے مختص۔ گریٹر کراچی واٹر بلک سپلائی اسکیم کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کراچی میں منصوبوں کے لیے وفاقی بجٹ میں مختص فنڈز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ ممبر رحمان کا نجی شعبے کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔ حکومت کو پیٹرول کی قیمت 3 سال تک 225 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کا مشورہ دے دیا۔
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 9 मई की भूल मिटाने और सियासी इंतकाम खत्म करने का मुतालबा। कहा, हमेशा कौमी इत्तेफाक राय की बात की है। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आला का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। सूबे भर में 5000 से ज्यादा खवातीन को घर बैठे मार्केट की जरूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि बेवा, मुतालिका और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को सहर प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी। कराची के इलाके DHA फेज 6 में इमाम बारगाह के बाहर तेज रफ्तार सुजुकी टकराने के वाक़े में फरार होने वाले तीसरे शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तीसरा शख्स कस्बा कॉलोनी से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत 3 अफराद नशे की हालत में थे। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज बारिश। लियर, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश की पेशगोई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। केयर स्टार्मर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करने के दौरान फरते जज्बात से आबदीदा हो गए। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द स्विट्ज़रलैंड से तेहरान रवाना। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी टीम्स आज मुज़ाकरात शुरू करेंगी। तकनीकी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए तनाज़ात निपटाने वाला सेल कायम करने पर इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। पाकिस्तान और कतर का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। स्विट्ज़रलैंड का अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने वाले कतर और पाकिस्तान की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। स्विस हुकाम के मुताबिक रोड मैप तकनीकी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करेगा। ईरान को कुछ मुंजमद असासाजात के जारी कर दिए गए। तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी गईं। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया पर रद्द अमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि आबनाए हॉर्मोज़ का मुहासरा ख़त्म कर दिया गया। ईरान के लिए बड़े पैमाने पर तामीर नौ और तरक्याती मंसूबे का आगाज़ हो गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई ने वाज़ेह किया कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीम्स अपना काम जारी रखेंगी। आबनाए हॉर्मज़ में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त का मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। हतमी मुआहिदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने बहरान के खात्मे, अमन और तरक्की की शुरुआत के लिए अहम दिन करार दिया। वाज़ेह किया कि अगर ईरानी क़यादत इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बनना और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो फिर अमरीका ईरान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाएगा। और कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई शुरुआत की हिदायत की है और कहा है कि ईरानी अवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आज़म मुनीर का बातचीत में अहम किरदार। मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अमन के लिए अहम मौका करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। नायब अमरीकी सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुअत्तरिफ वी लव पाकिस्तान का नारा लगा दिया। JD वैंस ने अपनी भारतीय अहलिया के साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी जिंदगी की अहम शख्सियत करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला इजलास।
9 मुंतखब 30 अरकान ने अपने अहदों का हलफ उठा लिया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नज़ीर अहमद ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास 3 बजे तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारत दाखिला के मुतालबात ज़र मंजूरी के लिए पेश कर दिए। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेटर कराची वाटर बल्क सप्लाई स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में मनसूबों के लिए वफाकी बजट में मुख्तस फंड्स की तफसीलात सामने आ गई हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेंबर रहमान का निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 3 साल तक 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का 9 मई की भूल मिटाने और सियासी इंतकाम खत्म करने का मुतालबा। कहा, हमेशा कौमी इत्तेफाक राय की बात की है। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आला का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। सूबे भर में 5000 से ज्यादा खवातीन को घर बैठे मार्केट की जरूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि बेवा, मुतालिका और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को सहर प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी। कराची के इलाके DHA फेज 6 में इमाम बारगाह के बाहर तेज रफ्तार सुजुकी टकराने के वाक़े में फरार होने वाले तीसरे शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तीसरा शख्स कस्बा कॉलोनी से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत 3 अफराद नशे की हालत में थे। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज बारिश। लियर, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश की पेशगोई।